can you hear me? Can someone type in comment if they can hear me? Yes, sir, but a little bit loud. Hello. Hello. Sir, we can hear you, but you need to be a bit louder. Okay, just give me one. Yeah, yeah. Can you hear me now? Yes, perfect. Actually, it's still very low, in fact. Still very low. Yeah. I won't call it perfect. Uh, And it's not Lokman sir, right? Who is this talking? this is Naman. Hi, Naman. Hi. So just give me one quick moment. I'll just fix this thing so that you can hear me. Thanks so much. Can you hear me now? Yeah, much better. Yes, yes. Naman, not sure if you can hear us, but yes, we can hear you better now. Yeah. Just give me one quick moment. Okay, your voice is gone again. Gone again. Yeah. Can you hear me now? Yes. Great. Awesome. Okay. So how many people who would be joining in generally? Uh, Group has, I think, Yeah, 8 to 10. 8 to 10 people. 8 to 10. Okay. Yeah. So we have like 7 people, including me and Lokman sir. So okay. No issues. So we'll wait for like 2-3 minutes more, then we'll start. Is it okay with you guys? Yeah, yeah, sure, sir. Great, great. Sir, till that, can I ask my website down? Yeah, please tell me. Can I share my screen and show? Can you give me permissions? For that, it will take some time. If you have, it will take some time to share and review. What Because I'll do me, at the end of the session, I'll share my number, so you can yeah. give me a call and then we can Sir, discuss. this is Ronak from this side. Yeah, Ronak, I know. Yeah, yeah. Yeah, yeah. So you have the concern for the website? So means I have created a landing page. So in Uh-huh. that I have created a button. So in that button I want to create a form where if anyone clicks on that button, he direct fills the form. So that I wanted to do. Okay. For that, it is a bit complicated, so we can connect later. Okay. Okay, For yeah, that. yeah. So you had my number, huh? Yes, yes, yes. Naman, your voice is still in and out, and I'm not too sure. I just want to make sure that you are all settled once we start the actual Yeah, content. yeah, that's what I asked previously. So someone said that they can hear me. So I think everything was going perfect. But now you're saying it is not. So I'll just test it once again. Just give me one thing.
Can you hear me now? Yes, much better. Great, great. And if you guys feel anything like the sound is still going in and out in between, so just tell me. Okay. Yeah, sure. Great. Okay. So what I think is we should start. It's lead generation, and it's I would say not that complicated. Okay, but still we have to understand the concept here in order to uh, uh, understand how lead generation works on Facebook. Okay, just give me 1 minute here. Okay. So first of all, by introduction, I'll start with that. My name is Naman Nair. Okay, I'm in digital marketing from last 4 to 5 years. I worked with Google previously, and my expertise is in website designing, Google Ads, Facebook Ads. Okay, and I help businesses with lead generation. Okay. And currently, I'm associated with Mark Darshan, people's trainer, uh, educating on different divisions of digital marketing, specifically ads and website development. Okay. Okay. So if starting with, we have like 5 to 6 people out here. Okay. So if just Rajesh Kumar has been added. Okay. If people quickly, you can go ahead and tell me how many people have generated leads through Facebook ad till now. Like even once, if you did, Yes. type in yes. If no, then type in no. So that I have a clarity, I'll explain accordingly. Okay. Great. Rahul Agarwal, no. Ronak, yes. Arthab Gupta, once. Great. So you know the concept. Okay. Anyone else who did it? Write yes or no. Simple. If it is a no, you can write it because here you, that is why you are here. You want to learn. Okay, so no one is replying. Okay, so what I'll do, I'll take it as I'll start from very basic here. Okay. So tell me if you can see my screen. Okay. Not yet. Okay. Can you see my screen now? Yeah, I think it's coming up. Yes, Naman, we can see your screen now. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Sorry, it was gone on mute. I'm sorry, there's some technical glitches are coming. Yeah, but again, your voice is very low again, Naman. Can you hear me now? Yeah, a little better, but generally we are used to much better. Much better. Okay. Yeah. Yeah. So I'm sorry for that. Okay. So Bozali, if you can hear me, understand me, that works. I understand. From next time, I'll fix it. I don't have much time to go ahead and fix this thing because everyone Sure, has been sure. waiting. But you are able to understand me. What I'm Yes, saying, yes, right? yes. Thank you for that. Okay, so first of all, I was talking about the lead generation. Okay, so every platform, if you are already doing this course. Okay, so we understand that you want to generate leads. And first of all, the first thing is with lead generation, it's never ending. Okay, you have to be constant, and you cannot depend on one source for lead generation. Yeah, there is a possibility that every platform provide you a quality of leads. Okay, some provide you good quality of leads, some provide you lesser quality of leads. So you have to judge after the conversions, after the response getting from the customer. So we call it a funnel for that. Okay,
the lead source comes in, how you mature the audience, what's the customer journey. So you can study about that. So we'll focus more on lead generation here. Okay, it will be on the Facebook platform. Okay, as you can see on the screen. Okay, lead generation can be done through Facebook ads. Okay, that's one thing. There are other ways as well, but we will be primarily talking through Facebook ad, how you can generate it, because here we are talking about quality leads, which I mentioned earlier. Okay, so first, whenever you're doing marketing, because you're a marketer now, okay, you are generating leads, you're marketing your product or services, or you're looking for new customers for the product. Always remember that you have to understand the platform first. आपको platform समझना होगा, ठीक है, platform कैसे काम करता है, WhatsApp अलग तरीके से काम करता है, गूगल उसका अलग एल्गोरिथम है, फेसबुक अलग एल्गोरिथम है, कोरा पे चले जाए उसका अलग एल्गोरिथम है, तबोला एड्स हैं उसका अलग एल्गोरिथम है, ठीक है. सो यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि हर प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एफबी, देन वी विल मूव टू एफबी एड. Okay, like how to lead generate through FB ads. Okay, so everyone knows about Facebook. सबको Facebook के बारे में पता है, ठीक है, that how Facebook works and what exactly it is. But starting हम लोग फिर भी इसके बारे में पढ़ेंगे, और we are covering the whole topic here. So Facebook is a social networking site that makes it easy for you to connect with your family and friends online. Originally designed for college students in 2004 by Mark Zuckerberg when he was enrolled at Harvard University. So there is a film, एक film भी बनी है social networking, which you can watch, that how that idea pops up in his mind, yeah, about creating a Facebook. तो बहुत ही सरल भाषा में सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे हम लोग अपना लोग ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, अपना स्टेटस शेयर कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, कम्युनिटीज ज्वाइन कर रहे हैं. आजकल फेसबुक ग्रुप का बहुत ट्रेंड है, हम किसी ना ग्रुप में कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं, या फिर साथ में हम लोग कोई पेज लाइक कर रहा होगा. तो ये काइंड ऑफ कम्युनिटी, एक जगह पे हम चीजें देख सकते हैं. तो दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ फेसबुक. अब कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है, इसकी. सो द एडवांटेज इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ. अब ये हो चुका है, आप सुबह उठ के कभी भी देखिएगा, you open a Facebook at least once a day, और जनरली बहुत सारे लोग सुबह खोलते ही हैं Facebook to check social media, ठीक है. और जब ये एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है किसी का, कोई रोज ओपन कर रहा है, इतने लोग हैं, इसके बाद में स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करूंगा, so it will give some more light. I'll share some statistics further. तो आपको पता लगेगा कितने लोग एक्टिव हैं इसमें, तो आपको पोटेंशियल लगेगा कि कितना रीच आपके बिजनेस को मिल सकता है, या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रीच कितना मिल सकता है. सो दैट इज वेयर द पावर ऑफ दैट प्लेटफॉर्म गाइस, कितने लोग हैं. तो ये एक बात हमें पता लगती है कि डेली पार्ट है हमारी लाइफ का. सो एवरीवन इज यूजिंग इट. नाउ विल टॉक अबाउट द एडवांटेज. सो बेसिकली एक सोशल नेटवर्क है जिसमें देयर इज अ ग्रेट वे टू कीप इन टच विद फ्रेंड्स एंड आल्सो मेक न्यू फ्रेंड्स. आप नए लोगों से मिलते हैं, नए ग्रुप, नई कम्युनिटीज ज्वाइन करते हैं विद सेम इंटरेस्ट और हॉबी, और आप कनेक्ट भी करते हैं, ठीक है. इसमें आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लाइक फोटोज. आप कहीं जा रहे हैं, कोविड टाइम में हमें बहुत काम आया था, लाइक यू आर नॉट कनेक्टेड टू फैमिली बट यू नो इफ योर फैमिली इज देयर और नॉट, ठीक है, वो ठीक है, वो फोटोज डाल रहे हैं, इवन इफ दे आर नॉट स्पेसिफिकली सेंडिंग, क्योंकि व्हाट्सएप से हम सेंड कर देते हैं, स्पेसिफिकली नहीं, वो अपना स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, दोस्तों का, तो पता लगता रहता है यू आर कनेक्टेड, ठीक है. दैट्स अ बेसिक एडवांटेज व्हिच वी गेट. आज से 15 साल पहले सोचें, ठीक है, हु आर मिलेनियल्स दे वुड अंडरस्टैंड, ठीक है, और हु आर नॉट मिलेनियल, बिफोर मिलेनियल दे विल आल्सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, कि अगर आप दिल्ली में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, आगरा में क्या हो मुझे नहीं पता चल रहा, मेरी फैमिली का, मेरे रिश्तेदारों का. सो दैट इज अ ग्रेट वे. आई एम कनेक्टेड टू माई फ्रेंड, ठीक है, आफ्टर 10 years ऑफ माई college I still connected to the friend because of Facebook. So that is a advantage. Okay. So अब इसमें सबसे अच्छा Facebook का एक एल्गोरिथम भी इस तरीके से काम करता है
ठीक है, जैसे लास्ट पैरा में दिया, फेसबुक अलाउ पीपल टू कनेक्ट, टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, टू डिस्कस इशू, व्यू पॉइंट एंड शेयर एडवाइस। अब ये आपके बिजनेस के हिसाब से कैसे बेनिफिट हो सकता है? जैसे कि फेसबुक अलाउ करता है सेम माइंडसेट के लोगों को अर्न करना, तो इसी प्रकार से अगर फॉर एग्जांपल आप लीड जनरेट कर रहे हैं रियल एस्टेट का, तो फेसबुक का एल्गोरिथम ट्रैक करता है कि कौन ऑलरेडी हाउस देख रहा है, तो वो उन्हीं को ही ऐड दिखाएगा आपका। ठीक है, तो आपके माइंडसेट के हिसाब से चलता है, व्हाट यू लाइक विल शो यू दैट ओनली। सो इससे आपको लीड जनरेट करने में बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए वो क्वालिटी लीड बनती है आपके लिए। Now, specifically go to disadvantage. We'll not stretch this, but a couple of liners which you can implement in your personal life as well. Which is, we share too much personal information. Anyone can get that. किसी को भी पता लगता है हम कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या हमने पढ़ाई करी है, क्या किया है, ठीक है। और फेक प्रोफाइल बहुत सारी होती है। So supposedly आप मेरे से बात कर रहे हैं currently, ठीक है, I'm telling you my name, number, okay, but instead you get to know my name is like Sachin, okay, or Manmi, okay. How would you figure that out? You'll feel bad at the end of the day, like I'm talking to someone and his name is not that, okay. So that is one thing, okay. You can get personal details. That is Naman, your voice is again going, man. Very difficult to hear you. Can you hear me now? Yeah, a little better. Give me 1 minute. Hello, can you hear me now? Yeah, we can make out probably. Okay, is it better than before? Yeah, it's slightly better than before. Yes, please. Great. Okay, so we'll move to the other one here. Okay, so now we'll come to the main point. Okay, that how it helps businesses, our business specifically. So as I told you in the beginning, शुरू में बात हुई थी कि कैसे Facebook या reach हमें help कर सकता है, how powerful Facebook is. ठीक है, तो पावर के मामले में देखे जाए तो टोटल इनके एक्टिव यूजर है विच इज 2.60 बिलियन, ठीक है। और अगर आप डेली एक्टिव यूजर देखें 1.73 बिलियन, हमारे देश की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन। सो यू कैन सी जितने हमारे देश में लोग हैं उससे ज्यादा फेसबुक पे एक्टिव है। सो इवन इफ यू वांट टू कनेक्ट, सेल समथिंग और गेट अ लीड फ्रॉम यूएसए, यू कैन गेट दैट। ऑस्ट्रेलिया से चाहिए कर सकते हैं, कहीं से भी चाहिए, यूके से चाहिए, वी कैन गेट दोस डिटेल्स फ्रॉम देयर। तो इतने लोग एक्टिव हैं। नाउ देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, जो हमें थोड़ा प्राउड भी होता है उस पर, ठीक है, विच इज गुड फॉर आवर बिजनेस एज वेल, अगर आप इंडिया में बिजनेस करना चाह रहे हो। सो इफ यू सी द स्टैट दिस, ठीक है, पहले नंबर पे इंडिया है, ठीक है, यू सी पहले नंबर पे इंडिया विद द टॉप यूजर्स फॉर फेसबुक, ठीक है, सबसे ज्यादा वो इंडिया से है उनके पास, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में भी जहाँ पे वो ऐप डेवलप हुआ है, ठीक है, जहाँ से वो बिलोंग करता है फेसबुक, उस सर्च का भी इतने लोग नहीं है जितना दूसरी कंट्री में लोग उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज लाइक 24 करोड़ पीपल इन इंडिया विच मेक्स अस अराउंड 20% of our population, 20 to 25% of our population is using Facebook. अब 25% लोगों के पास पहुंचने की क्षमता है इस फेसबुक ऐप से, या फेसबुक वेबसाइट से। सो इस प्लेटफॉर्म की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। नंबर आपके सामने, यू कैन गेट इट ऑन योर ओन, ठीक है, कि आप कितनी क्षमता तक लोगों से रीच कर सकते हैं। जितने ज्यादा को मार्केटिंग में यही है, जितने ज्यादा लोगों को रीच करेंगे उतने ज्यादा आपके कन्वर्जन होंगे। That is the thing. Okay. This is basically targeting हम कहते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में अभी जैसे ट्रेडिशनल मीडिया करते थे उसमें टारगेटिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन इसमें हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे मई 2019 का डेटा है, ठीक है, इसमें अगर आप चार्ट देखें जो नीचे बना हुआ है, ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, 13 to 17 years of age का जो टोटल फेसबुक पॉपुलेशन में 6.7%, 13 से 17 उम्र की एज की है। 33% पॉपुलेशन, 33.9, ठीक है, वो पॉपुलेशन आपकी 18 से 24, और 37 25 से 34, उसके बाद फिर वो डिक्रीज होती जा रही है। नाउ अब इस डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। फेसबुक एक हमें टारगेटिंग का ऑप्शन देता है डेमोग्राफिक्स एज के हिसाब से। उससे आपको ये फायदा मिल जाता है कि आप पहला चीज, हर प्रोडक्ट हर किसी को सेल नहीं कर सकते, ठीक है।
कितने लोग इस ग्रुप में हैं जिन्होंने जिनकी वाइफ है और जिनके हस्बैंड है, वो भी बताइए, ठीक है, जिनकी वाइफ हो, ठीक है। तो आप लिख के टाइप करिए वाइफ, जिनके हस्बैंड है वो हस्बैंड, एक बार टाइप करिए। सो आई विल शेयर सम डेटा, यू विल बी एबल टू कनेक्ट देयर। अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी हो, ठीक है, इफ यू आर नॉट मैरिड यू कैन टेल मी, या पास में गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, तो भी आप मुझे थोड़ा बताइए। आई विल शेयर वन फैक्ट हियर, जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे टारगेटिंग हमारे लिए कैसे यूजफुल है। Sorry, what's the question, Naman? I couldn't hear that. Okay, so anyone who is married, okay, किसी की वाइफ है, so just tell me, okay, just type in wife। अगर कोई लेडी फीमेल है और उनके हस्बैंड है, जस्ट टाइप इन हस्बैंड। सो आई, फिर मैं एक फैक्ट आपको शेयर करूंगा, ठीक है, रिलेटेड वाइफ। ओके, पीपल आर मैरिड हियर, ग्रेट। सो आई विल स्पेसिफिकली आस्क टू अर्नव हियर, ठीक है। अर्नव जी, ये बताइए, आपने कभी अपनी वाइफ के कॉस्मेटिक्स खरीदे? No. Anything. Okay, No. Rajesh, have you ever bought it? If you cannot speak, you can just type in yes or no. कोई भी cosmetic, even a lipstick or anything. I may have ordered online, but not purchased. I would have just ordered what she would have asked. But she would have asked. Okay? Yes. Just hold that part. Okay. So the difference is targeting हमारे लिए कहाँ काम आती है। अब जैसे कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मैन को नहीं दिखाया जाएगा कभी, ठीक है। अगर मैं किसी का ऐड बना रहा हूँ, ठीक है, तो अर्नब कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं, मुझे ऐड बनाने को दो, तो मैन को दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैन कभी कॉस्मेटिक परचेज नहीं करते। सो यहाँ पे हमें टारगेटिंग का बहुत अच्छा फैक्टर मिलता है लीड जनरेट करने का, क्योंकि मैंने जैसे कहा था क्वालिटी लीड, ठीक है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो भी लीड ही होती है, बट वो इमीडिएट कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। और फीमेल डिडंट आंसर एनीथिंग, आई डोंट नो एनी फीमेल वी हैव इन द ग्रुप, तो वो बता सकते हैं कि उनके हस्बैंड ने कभी खरीदा है कि नहीं खरीदा। वन अस्मिता, आई डोंट नो वेदर शी इज हेयरिंग और नॉट, बट यू विल बी एबल टू रिलेट एट दिस पॉइंट कि टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, कि इसमें आप अगर गलत जो वो टारगेट कर दें, ठीक है, कॉस्मेटिक का सामान मैन खरीदता नहीं है, मैं उससे टारगेट कर दूं, आई एम वेस्टिंग मनी देयर, और आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है। तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म जो सबसे अच्छा रहता है वो 18 to 24, और अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यू कैन टारगेट 45 ईयर्स ऑफ एज एज वेल, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा रिजल्ट आएगा जब आप टारगेट करेंगे, ठीक है। और इसमें जब आप ऐड बनाएं, ठीक है, उसके 3 पॉइंटर्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपको पहले हमेशा पहले डिफाइन करने होंगे बिफोर रनिंग दी ऐड, ठीक है। इसको आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू डिफाइन देयर। ओके, फर्स्ट ऑफ हाउ फेसबुक एड लुक, ठीक है। अगर आप इस इमेज में देखेंगे, ठीक है, इट इज द ब्रांड नेम इज स्मॉलेबल, उसके नीचे लिखा है स्पॉन्सर्ड। सो दैट इज हाउ स्पॉन्सर्ड इज एक्चुअली द वर्ड which is used. Somewhere it is written sponsored, somewhere it is written promoted, somewhere on Google it is written AD, which is ad. Okay, so that is how you can recognize it is an ad, and it is all ads are always paid. So पहली चीज जो हमें दो चीजें करनी होती है, पहला होता है एक एफबी पेज, आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम ऐड बना सकते हैं, दो चीजें आपको करनी होगी। तो पहले हम फेसबुक पेज के बारे में बताएंगे, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले मैं फेसबुक पेज का बेसिक बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद आपका एड किस टाइप का बनना है, कैसे बनना है, वो भी आपको बताऊंगा। सो जब भी आप पेज बनाएं, ठीक है, सो यू हैव टू वांट टू क्रिएट बिजनेस ब्रांड, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना होगा आपका बिजनेस है, ब्रांड है, या कम्युनिटी या पब्लिक फिगर है, ठीक है। बिजनेस और ब्रांड आप यूज करेंगे क्योंकि आप उसे यू आर सेलिंग समथिंग, लीड जनरेट करें। इफ यू आर नॉट सेलिंग, बेसिकली कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आप इधर कुछ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, या अपना पर्सनल पेज है वो बना रहे हैं, या फिर आप पब्लिक फिगर हैं, ठीक है, लाइक पॉलिटिशियन और एक्टर्स, ठीक है, वो लोग कम्युनिटी और पब्लिक पेज। हम स्टिक करेंगे बिजनेस और ब्रांड्स इसमें। फिर उसके बाद हमें कैटेगरी डालनी होती है,
ठीक है, नाम डालना होता है पेज का, कैटेगरी डालनी होती है। ओके, एंड डोंट, दिस इज ऑल थियोरेटिकल, आई डू प्रैक्टिकल। अगर आपको कहीं समझ में नहीं भी आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल, ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, आप जब प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है, यू विल बी एबल टू ग्रैब मोर, बिकॉज हमारा माइंड ज्यादा जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, या देखते हैं विजुअलाइज, तब हमारा ज्यादा अच्छे ग्रैब कर पाते हैं। सो डोंट वरी, ठीक है, अभी मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देन आई क्रिएट, ठीक है, उसमें फिर आप प्रोफाइल पिक्चर अपना अपडेट करेंगे, कवर इमेज विल शो, ठीक है। और ये हमेशा बनाइएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, जब भी कोई पेज पे आए इट शुड लुक गुड। सेकेंडली, आपका एक यूजर नेम होना चाहिए, ठीक है। द यूजर नेम स्पेसिफिकली वुड टेल यू कि अगर कोई सर्च कर रहा है तो आपका डायरेक्टली पेज वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे अभी इसी का एग्जांपल लेते हैं, ओलफ्स लार्ज सैंडविचेस, अगर आप इमेज में देखेंगे, सो इनके पेज नाम में ही पता लग रहा है दे आर सेलिंग सैंडविचेस, ठीक है। अगर उसके बाद देखेंगे, इट इज एट ओलफ्स, जो यूजर नेम है एट के बाद लिखा हुआ है, एट ओलफ्स लार्ज सैंडविचेस सैंडविच शॉप, सो दैट क्लियरली मेंशन, उनके नाम में ही पता लग रहा है वो एक सैंडविच शॉप, ठीक है। देन ऑलवेज कीप अ डिस्क्रिप्शन, इसमें हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इसमें क्लियर लिखा, फ्रेंडली नेबरहुड डेली सर्विंग द लार्जेस्ट मोस्ट जेनरसली साइज्ड सैंडविचेस इन लॉस एंजलिस। ये तो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि लॉस एंजलिस में दे आर सेलिंग सैंडविचेस, ठीक है। इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, अपने कस्टमर्स के लिए आप हमेशा सिंपल चीजें बनाएंगे, ठीक है, और जो ने इजीली एक ही बार में समझ में आ जाए, देन ओनली यू कैन सक्सीड। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर आप अपना कैटेगरी दीजिए, विच एवर रेस्टोरेंट यू लाइक, ठीक है। आप जहाँ पे रेस्टोरेंट है, कैटेगरी अपने बिजनेस के हिसाब से, उस हिसाब से इनका रेस्टोरेंट है तो उन्होंने दिया है। अगर आपका रियल एस्टेट का है तो रियल एस्टेट लिखिए, इफ यू आर प्रोवाइडिंग टीचिंग सर्विसेज तो टीचिंग रखिए। सो हैव टू सी व्हाट यू आर एक्जैक्टली प्रोवाइडिंग, ठीक है। देन क्रिएट योर फर्स्ट पोस्ट, अपना पोस्ट क्रिएट करिए एंड पब्लिश इट। इसका एक ट्रिक बना देते हैं, वो ये, अगर आप शुरू का पेज है, डेली एक पोस्ट आप उसमें डालते रहिए। दिस इज अपार्ट फ्रॉम आई एम टॉकिंग अबाउट लीड जनरेशन, बट में फेसबुक, अगर आप अपना ग्रो करना चाहते हैं पेज, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम काम करता है उस हिसाब से कि जितने ज्यादा पोस्ट आएंगे, जितने ज्यादा लोग आपको व्यू करते हैं, उतना ज्यादा पुश होता है। Okay, so we'll go ahead and stop here. Okay, so this Facebook account is one of my clients. Okay, uh, okay. So first we understand how we have to create a page. पहले हम प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, फिर हम पेज क्रिएट करेंगे। This is the website. Are you sorry? Can you hear me? अभी आवाज आ रही है आपको ठीक? Yes, yes, we can hear you. It's a little tough, but we can hear you. Sorry, again tough. I'm really sorry, guys. ठीक है. Now is it better than before? No, Naman, it's same. It's a little Same. tough, but Okay. Are you able to understand me? yes. Yeah. Okay, I'm really sorry for this thing. Okay, I'll fix it for next time. So yeah, this is the website onlyenglish.com. I'll give you a brief. Okay, this person, Uppal, okay, teach about English. Okay, that's a basic framework I can give you. Okay, No, and Naman, your voice is completely going in and out. I think you watch out your positioning of the mic to your mouth. I think it's got to do with that. okay, can you hear me now? Yes. Okay, great. Thank you for the suggestion. So if you see here, onlyenglishonline.com, okay, this guy's name is Uppal. Okay,
and he teaches English. That is the framework. Okay, and now what he needs leads for doing he does a webinar. Okay, and he needs leads for that. He wants to call people in the webinar में लोगों को बुलाना चाहता है, ठीक है, उसके लिए वो फेसबुक से लीड जनरेट करेगा. So now we'll check how we will do it. Okay, so first we'll create a page. This is the new interface of Facebook. इसे आप यूज करना स्टार्ट कर दीजिएगा और ये आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप भी होगा. ठीक है, you can create a page on a mobile phone as well, but add आपके लैपटॉप से ही रन होता है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है, अब हमें पेज बनाना कैसे है. इंटरफेस में अगर आप लेफ्ट में जाएंगे, यू विल सी अ सेक्शन हियर पेजेस. ठीक है, सो क्लिक ऑन द पेजेस. ठीक है, अब नाउ यू विल सी हियर क्रिएट न्यू पेज. ठीक है, we'll tap on create new page. Okay, now page name is required. Naman, one question. See, we all have personal Facebook accounts. When we are on this digital marketing journey for ourselves or generally for our clients, should we be starting a new Facebook account, or within our existing Facebook account we can create business pages? Within existing Facebook account, you can create business pages. So our social, at personal level, social contacts will not get to know that we've created a business page? No, it will not be compromised. Your personal details will not be compromised. Yeah. Page is a different thing. Okay, it's a different identity altogether, but it is managed by one person. Okay. Similar question, when we create a group, right, as against page, will our existing audience get to know about that group that we have created or no? For group, it's a more of a personal thing. Okay, where when you create a group, okay, people want to interact. So group is created at a person's level, okay, not at a business level. No, that is fine. No, I got your point. I'm saying I created a group, let us say, and I have an audience of my personal audience of, let us say, 500 people. But in the group, I just made member to 2 of them. Will the remaining 498 get to know that Naval has created a group and I was not included in the group? No, they will not. They will not until you invite them. Okay. So don't worry about that. So okay. First of all, page name is required as we are talking about English. So I'll put it learn English. You'll see learn English the page name. Category. We have to search which will come in. English will not, but we'll try. Okay, it will come under education. That you can do. Then there's a description. It should be simple. Don't make it much. Put it like 50 words. Okay. The character limit is 255. Okay, put it like 50 words or lesser than that. It should just clear the message. I'll put it like this. Page. This is the basic information. Okay, from here you can go ahead and check, add the photos. Okay, which I don't have. I'll not be adding, but you can do that. I'm just giving you a basic framework how to create a page. So that's how you create a page. You see here English, learn English was created. Always keep the name simple, so it will actually give people more information that what you are doing. It will not complicate.
and from here you can create a post. Okay, this has been created. Now you can do other activities here. Okay, like here if you want to add information or edit information about the page, you can do it. Okay, it has all the options to but these are the basic things like logo. Okay, description that you can do from here only. Okay, that's how you create a page. Any confusion till here which you feel? If you want any part to be repeated, because after this I would be moving to the next part of the Facebook ad. Can you please reply? Is it clear? If it is clear, please type it clear C. If it is It's not clear. clear, okay, it's clear. Okay. Uh, so here, if you'll come, okay, in the About Us page, okay, you can put in more information, like if you have a website. Yeah, again, one more thing. You need a website, okay, to generate lead through Facebook ad. Okay, so you need to have a website. Add the website, add the phone number. Okay. If you have an email, you can add all the information, and these information is somewhere you need it. Okay. If you'll avoid, you will be losing on business. But what I suggest is always keep all the information like website, phone number, email. These are the three basic things you should always have when you're doing business. Okay. So we'll go ahead and discuss about the ad here. Okay, how you can generate leads from there. Okay, so can you see my new screen? Yes. Great. So first, this is in 5 parts I would be discussing. Okay, there are 5 steps to build an ad. But before go ahead and creating the ad, you have to prepare the first 3 steps, which are important, which are setting your creatives, यानी choosing your ad image या फिर videos, whichever you want to, आप जो भी ad में डालना चाहते हैं, आपकी images, आपकी videos, वो आपको पहले से create करके रखनी है। दूसरा, टारगेटिंग योर फेसबुक एड, जो मैंने टारगेटिंग का ऑप्शन आपको शुरू में बताया था, ठीक है, इसमें और होगा भी, मैं बताऊंगा, पर टारगेट आपको लिख के रखने होंगे। व्हाट एज ग्रुप आपका क्या है, एज ग्रुप क्या है, किस सिटी में दिखाना चाहते हैं, किस कंट्री में दिखाना चाह रहे हैं, आपकी सर्विसेज किस सिटी में है, किस कंट्री में है, ये सारा आपको पहले से एक पीस ऑफ पेपर पे या नोटपैड पे या वर्डपैड पे पहले प्रिपेयर करके रखना होगा। ठीक है, उसके बाद डिसाइडिंग योर एड स्पेंड, अगर आपने चलाया है शुरू में या रेगुलरली चला रहे हैं, ठीक है, यू वुड नो हाउ योर कैंपेन इज परफॉर्मिंग। सो अब ये जो एड्स चलाते हैं, हर कैंपेन की अपनी एक जर्नी होती है, ठीक है। अभी आप नए हैं, कई सारे जने नए हैं यहाँ पे। सो अभी जब आप स्टार्ट करें, स्टार्टेड विद 100 रुपीज पर डे का, 5 से 6 दिन का एड चलाइए, उसका कैंपेन का एनालाइज करिए, आपका ट्रैफिक कैसा आ रहा है, कितनी लीड्स आ रही है, ठीक है, कितने रुपए की पर लीड पड़ रही है मेरे पास। अगर आपके पास लीड अच्छी आ रही है, ठीक है, उतने में आपका टारगेट पूरा हो रहा है, तो डोंट इंक्रीज द बजट, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो बजट ऐसे इंक्रीज कीजिए, दैट इज द ट्रिक, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेसबुक एड परफॉर्मेंस, ठीक है, और ए/बी टेस्टिंग। ये बाद में होता है जब एड आने लगता है, ठीक है, एड का डेटा आने लगता है, कितने क्लिक आ रहे हैं, कितनी लीड आ रही है, वो हम मेजर करते हैं, ठीक है। बट करेंटली और फिर ए/बी टेस्टिंग होती है, उसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, बिकॉज इट विल कॉम्प्लिकेट, इट्स बिट इजी, ठीक है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। बट फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फर्स्ट 3 स्टेप्स। So first of all, setting your creatives, choosing your ad image. Your ad headline and body copy are what increase your Facebook ad click-through rate. Now, the digital marketing में आप enter कर रहे हैं, or you are already doing so. If you are aware, good. If you are not aware, click-through rate. What is that? Click-through rate is something
how many times your ad is shown and how many people have clicked on that ad. Simple. That is click to rate. मैंने 100 लोगों को दिखाया ad अपना, ठीक है, impression है, उसमें से 20 लोगों ने click किया उस पे. That is 20% is my click through rate. Simple. अब जो क्रिएटिव्स आप क्रिएट करें या एड टेक्स्ट उसमें डालें, ठीक है, दैट हैज टू बी ऑलवेज गुड. क्योंकि जब भी आप फेसबुक ऐड आप इसके बाद, जब आप इस क्लास के बाद यूज करें, ठीक है, फेसबुक को यूज करेगा, आपको ऐड दिखेंगे, आप देखिएगा आप ऐड पे क्लिक कब करते हैं. पहली चीज, वो चीज ये होना चाहिए कि आपको वो चीज चाहिए. आपको कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें इमेज अच्छी लगती है, हम क्लिक कर देते हैं, वीडियो देख लेते हैं, स्पेसिफिकली यूट्यूब में होता है. कभी हम कोई ऐड चला बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो हमें प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं, फिर भी हम वीडियो देख लेते हैं. दिस हैपेंस जनरली. अब फेसबुक में क्या है कि ज्यादातर इमेज वही क्लिक होती है जो अच्छी है, ठीक है. तो पहला चीज उस प्रोडक्ट की नीड होनी चाहिए. अगर मेरी नीड ऑलरेडी है और फेसबुक वैसे मुझे ऐड दिखा रहा है, मुझे खरीदना है, तो वो इमेज अच्छी होनी चाहिए. अगर इमेज अच्छी नहीं होगी मैं नहीं खरीदूंगा. लेट्स सपोज मुझे टी शर्ट खरीदनी और वो टी शर्ट के अंदर जो मॉडल है, ठीक है, वो इतनी अच्छी रिप्रेजेंट नहीं करी, मैं जाऊंगा ही नहीं उस चीज को क्लिक ही नहीं करूंगा उस पर. सो दैट शुड ऑलवेज बी गुड. अगर किसी को आप घर रियल एस्टेट का कर रहे हैं तो घर की इमेज इतनी अच्छी होनी चाहिए, वो पूरी बिल्डिंग इतनी अच्छी सुंदर दिखनी चाहिए, ठीक है, या फिर उस जो आप रूम्स दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए उस इमेज में. दैट रिप्रेजेंट, बिकॉज जो भी घर खरीदे यू आर सेलिंग इमोशंस एक्चुअली, ठीक है. सो इट एक्चुअली डिपेंड्स. तो क्रिएटिव आपके हमेशा ही बहुत अच्छे हैं, और अगर आपके वीडियो क्रिएटिव्स हैं दैट परफॉर्म वेरी वेल ऑन फेसबुक. और फेसबुक आजकल एल्गोरिथम उसका वीडियो को ज्यादा है. इफ यू कैन क्रिएट अ वीडियो दैट वुड बी ऑसम, ठीक है. दैट्स वन थिंग अबाउट क्रिएटिव. सेकंड पार्ट होता है उसका रिटन, लाइक व्हाट यू आर राइटिंग एज अ हेडलाइन, इस पर ज्यादा क्लिक आए. अब ये 5 आइडिया है, ठीक है. अगेन वो हर जगह फिट नहीं होते, आपके में हो सकते हैं कहीं ना कहीं फिट हो जाए. कॉल टू एक्शन कहा जाता है, लाइक एंटर टू विन, ठीक है, रजिस्टर फॉर फ्री विजिट. अगर आप कार बेच रहे हैं, बुक अ टेस्ट ड्राइव, ठीक है, फ्री. और उसके बाद द वर्ड फ्री अगर आप कुछ दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड लीड मैग्नेट, ठीक है. लीड मैग्नेट में बहुत यूज होता है. लीड मैग्नेट आप कुछ उन्हें दे रहे हैं, ठीक है. जैसे मैं किसी को फ्री ई बुक दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरा फॉर्म भर दे रहे हैं, मेरे पास उनका ईमेल आ जा रहा है, ठीक है. दैट हाउ आई जनरेटेड लीड. अब मैं ईमेल से उनको ईमेल भेज सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में थ्रू ईमेल बता सकता हूँ. तो दिस इज कॉल्ड लीड मैग्नेट एक्चुअली, ठीक है. सो फ्री वर्ड का यूज करिए, ठीक है. अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है तो उस ब्रांड का वर्ड वहाँ पे दिखना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्योंकि ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी, तो उस पर वो लोग क्लिक करेंगे, ठीक है. तो ये हेडलाइन और इमेजेस के मैंने क्रिएटिव्स का बात दिखाया कि किस तरीके का आपका एड दिखेगा, ठीक है. लास्ट पॉइंट करते हैं, वी रिकमेंड यू इंक्लूड योर ब्रांड नेम समवेयर इन योर टेक्स्ट, बट अनलेस इट्स इजीली रिकॉग्नाइजेबल एंड पॉपुलर. ये तभी करिए जब वो पॉपुलर हो, नॉट विद योर हेडलाइन. इंस्टेड choose text that will grip the reader, sell them on your subject and encourage them to engage now. So जब भी आप एड टेक्स्ट लिखें, इट शुड बी ग्रिपिंग, इसे हम कहते हैं एड कॉपी. इफ यू आर मेकिंग अ नोट, ठीक है, मेक अ नोट. नोट बनाना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये सारे जो मैं वर्ड आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सुने हैं तो या आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा. अगर आप पहली बार कर रहे हैं सो यू विल नॉट रिमेम्बर, क्योंकि जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था मुझे भी रिमेम्बर नहीं हुआ था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डूइंग थिंग्स डेली आई रिमेम्बर. सो मेक अ नोट ऑफ इट. ऐड कॉपी वी कॉल इट. ऐड कॉपी हमेशा ग्रिपिंग होना चाहिए. तो पहला वर्ड हम देखते हैं, अब शुरू की 1-2 लाइनें जो होती है वो बहुत ग्रिपी होती है, जिससे कि हमें पता लग जाए कि क्या है, और उससे हम क्लिक करते हैं. सो दैट्स यू हैव टू जस्ट ग्रैब द अटेंशन देयर. ओके, अब सेटिंग योर क्रिएटिव, ठीक है. चूजिंग योर एड इमेज, ठीक है. जो 2 पॉइंटर है वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे डिटेल और शेयर करूंगा. योर इमेज इज व्हाट अट्रैक्ट्स अ फेसबुक यूजर आई, ठीक है. ज्यादा कलरफुल पिक्चर, ब्राइटनेस, इंटरेस्टिंग लगेगा, उस पर क्लिक आएंगे, ठीक है. तो हमेशा इमेज, अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी इमेज को मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ. इट जस्ट पहली बार जब आप देख रहे हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अपने आप दिखेगा, ठीक है. वरना एक और तरीका है जो मैं कभी कभार टेस्ट करता हूँ, मैं वो इमेज रखता हूँ और कुछ इमेज इंटरनेट से डाउनलोड करके उन सबको रखता हूँ, फिर टेस्ट करता हूँ कि मेरी इमेज अच्छी लग रही है कि नहीं. दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. सो
सेकंड पॉइंट है, recent studies show that a picture of a happy or smiling person create most engagement for Facebook ad. अगर आप रियल एस्टेट की लीड जनरेट कर रहे हैं तो वहां पे एक फैमिली को दिखाएंगे, ठीक है, वो ट्रिगर करेगा, बच्चों को दिखाएंगे वो ट्रिगर करेगा, बिकॉज बहुत सी फीमेल का ये मन होता है कि उनके बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है, अच्छा घर मिले, he or she will be at a very good place and they are living at a very good place. तो ये सारी चीजें आपको दिखानी होंगी। अब इसमें इस इमेज में अगर आप देखें, ठीक है, इसमें अगर आप लेफ्ट वाली इमेज को हम डिकोड करते हैं राइट वाली को, लेफ्ट वाली में सिंपल लोजिक ऊपर देखते हैं, मैडम लिखा है ब्रांड में, न्यू कलेक्शन अवेलेबल नाउ, फर्स्ट डे 20% ऑफ। सिंपल है, नया कलेक्शन है और उसके पहले दिन पे 20% ऑफ दे रहे हैं, यानी कि हम पहले दिन ही खरीदें तो 20% ऑफ मिलेगा, इट विल बी लेसर टुडे। मैं डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है, बुक टुडे शॉप नाउ का बटन दिया है। नाउ इफ यू गो टू द सेकंड इमेज, ठीक है, जो राइट में सेम मैडम न्यू कलेक्शन अवेलेबल फर्स्ट डे 20% ऑफ, सेम मैसेज बुक टुडे शॉप नाउ। अब आप देखेंगे वुमेन की इमेज पर, ठीक है, एंड इट्स लुकिंग गुड, ठीक है, और पीपल विल क्लिक ऑन इट। बट अगर इस जगह के मैं दूसरी इमेज लगाऊंगा, ठीक है, इस पर ज्यादा क्लिक आएंगे क्योंकि जो मेन है न्यू कलेक्शन फर्स्ट डे 20% ऑफ, दैट इज हाईलाइटेड। सो ये डिफरेंस आता है आपके इमेज का। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इमेजेस से आपके क्लिक्स का कितने चांसेस बढ़ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल इमेज, ठीक है। देन टारगेटिंग, जो मैंने आपको बताया था, टारगेट आप लोकेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल इसी में लेते हैं, इसी में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं उसे बता देता हूँ कि अगर आप एक स्पा का वीकेंड गेट अवे कॉन्टेस्ट बता रहे हो, कोई स्पा है, ठीक है, अब वो एक पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट करता है, लेट्स सपोज कनॉट प्लेस में ऑपरेट करता है, तो उसका एड मैं गुड़गांव में नहीं दिखाऊंगा। जैसे अगर जो लोग दिल्ली से वो रिलेट कर पाएंगे या दिल्ली से नहीं है, तो एक आपके स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, उसमें आपका शॉप है, ठीक है, और आप चाहते हैं उसके 5 किलोमीटर या 10 या 15 किलोमीटर के रेडियस से लोग आएंगे, तो आपका ऐड दूसरी सिटी में दिखा के कोई फायदा नहीं है। सो यू कैन टारगेट अकॉर्डिंग टू योर सिटी। सेकेंडली, दूसरा एग्जांपल इसमें यह है कि आप अगर आप एक ई बुक बेच रहे हैं विच इज रिटन इन इंग्लिश, अब मैं उसको टारगेट करके चाइना में नहीं बेचूंगा, वहां पे नहीं बोल जाती इंग्लिश, वहां पे मैड्रिन बोली जाती है, आई विल नॉट शो इट देयर। उधर दिखाऊंगा, मेरा पैसा वेस्ट होगा, कोई बोलता ही नहीं है उस लैंग्वेज को, ठीक है। सो इट विल बी शोन इन इंडिया, इंडियन राइटर है तो, ठीक है, वरना यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है उधर दिखाऊंगा। तो दैट इज वेयर टारगेटिंग हेल्प्स यू टू गेट टू द राइट काइंड ऑफ, और ये आपको दोनों पॉइंटर पहले से ही प्रिपेयर करना है एड कॉपी बनाने से पहले, ठीक है। ओके, सो नाउ द अदर इज टारगेटिंग योर फेसबुक एड, ठीक है। अब इसमें आ जाता है प्रिसाइज इंटरेस्ट एंड ब्रॉड कैटेगरी इंटरेस्ट, दो टाइप के इंटरेस्ट आते हैं। अब टारगेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए, जो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, कॉस्मेटिक्स का। सो इफ अगर कोई मैं मैन को दिखाऊंगा, जो मेरे को 2 मैन ने इधर ही मना कर दिया, ठीक है, 2 मेंबर ऑलरेडी कहा कि हमें खरीदा नहीं अंटिल आवर वाइफ टोल्ड अस, ठीक है, तो मैं अगर आपको ऐड दिखाऊंगा मेरे काम का ही नहीं है, क्योंकि आपको खरीदेंगे, रादर देन मैं आपकी वाइफ को दिखाऊंगा, वाइफ आपको बोलेंगे ये खरीद लो, ठीक है, तो मेरी सेल वहां से जनरेट होगी, टारगेट कस्टमर वहां है। इफ आई एम सेलिंग टी शर्ट्स, ठीक है, मेन टी शर्ट, तो मेन को दिखाऊंगा, वुमेन को भी दिखाऊंगा, क्योंकि कभी कभार हमारी परचेजिंग, ठीक है, मेन की परचेजिंग वुमेन भी करती है, तो दोनों को उसमें टारगेटिंग रहेगा। तो दैट इज वेयर आई कैन टारगेट। अब इसमें कुछ ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, लाइक इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट है, लाइक समवन, अगर आप क्रिकेट के बारे में बात करें, क्रिकेट का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्रिकेट का आपका ब्लॉग है, क्रिकेट का न्यूज है, ठीक है, तो लिस्टेड इंटरेस्ट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ तो मैं उसके लिए, अगर मैं आईपीएल का कोई एक न्यूज पोर्टल चला रहा हूँ या आईपीएल के बारे में दे रहा हूँ, तो मेरे में क्रिकेट लवर्स को मैं दिखा सकता हूँ, उनकी एक्टिविटीज, एजुकेशन और जॉब टाइटल के हिसाब से दिखा सकता हूँ, पेजेस पे लाइक, ऐप पे यूज और ग्रुप्स टू विच दे बिलोंग, इस हिसाब से मैं प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकता हूँ। बट शुरू में प्रिसाइज टारगेटिंग आप ज्यादा मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है वो नैरो डाउन हो जाती है। नैरो डाउन का मतलब यह है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 की ऑडियंस है, मैंने और टारगेटिंग उसमें डाल दिया, तो मेरी नैरो टारगेटिंग खाली 20 की रह जाएगी, तो मेरा रीच ही 20 का होगा, उसमें से मैं बिजनेस कितना निकाल पाऊंगा।
So थोड़ा टारगेटिंग करिए, 100 से वो 70 पे आ जाए, स्टिल फाइन, ठीक है, बट ज्यादा टारगेटिंग नहीं करेंगे. दिस इज जस्ट टू गिव यू अ थिंग दैट हाउ यू कैन डू इट. बट या, टारगेटिंग हैज टू बी डन, यू कैन नॉट अवॉइड दैट. ब्रॉड कैटेगरी टारगेटिंग होती है कि उनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, अगर रिंग बेच रहे हैं तो वहां पे काम आता है. पॉलिटिकल लीडिंग क्या है, जो ज्यादातर आजकल अगर आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस का, ठीक है, उन दोनों में वो लोग पॉलिटिकली टारगेटिंग करते हैं कि कौन लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं तो उनको ऐड दिखाया जाएगा. ये जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे काम आता है, ठीक है. ट्रैवल, इफ आई एम मैं कोई ट्रैवल सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें दिखा सकता हूँ. जिनका बर्थडे पास आ रहा है मैं उन लोगों को दिखा सकता हूँ, टेंड टू शॉपिंग, ठीक है, वहाँ पे. और कोई अगर रिसेंटली मूव में आते हैं कि अगर कोई सर्विसेज वो नहीं लेना चाहते हैं, उधर मैं दिखा सकता हूँ कोई अभी मूव हो रहा है या कोई ऑलरेडी सर्च कर रहा है. तो दैट इज वेयर यू गेट बेनिफिट ऑफ टारगेटिंग, ठीक है. एड बजट का नॉर्मली जब आप एड बनाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कितने लोगों तक आपकी रीच पहुंचेगी उतने पैसे, ठीक है. बट इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैं यही कहूंगा कि आप 100 रुपए से स्टार्ट करिए शुरू में एज यू आर न्यूबी, ठीक है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंक्रीज होगा बजट, क्योंकि आपके टारगेट्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है. और साथ ही साथ आपका जो बजट जो आ रहा होगा, ठीक है, जब अपना परफॉर्मेंस देखिए कितना आ रहा है मेरे पास, ठीक है, हो सकता है आपको वो इनिशियली स्टेज में एक हफ्ते के अंदर दूसरे हफ्ते में भी बढ़ाना पड़ जाए, ठीक है. सो कीप लिविंग ऑन दैट, ठीक है. ये आपको हमेशा यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है. ये हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में, तो मैं आपको कैंपेन में ही बता दूंगा. सो आई विल गो अहेड एंड क्रिएट अ कैंपेन दैट विल गिव मोर क्लैरिटी हियर. So again, it will be on the same Facebook. Okay. Okay. This is the page. Now again, how I will go to open the where I can run the ad. That is called Facebook Ad Manager. This is facebook.com, and that is called Facebook Ad Manager, where you can run the ad. बिल्कुल उसका अलग प्लेटफॉर्म है. Okay, so I'll click on more. Okay, then I click on add. Again, I'll show you how to do it. So that is my new interface. ठीक है. अब इधर मैं लेफ्ट में देखूंगा see more. I'll click on see more. And from here, if you see, I'll click on add. Sorry, ads. Okay. So Naman, one question: these would be paid ads, right? Yes, paid ads. Is there no way to generate organically without paid ads? Any Yes, leads you can do that using Facebook? Yes, you can do that. Okay. But those would, first of all, it is not that quality. Okay, that's one thing. Secondly, it will take time. Okay. I'll give you more example on that. You might be aware of real estate, correct? Yeah. So what you will do in real estate, you have a group, you post in group, okay, that I'm selling this property. Right? You can write an ad copy, okay, you can write an image, okay, and ask them to contact us and mention your number. Okay, I'm just telling you, in any other group you can post that. It's simple. Now what will happen, okay, in this group, let's suppose from which city you are from? Bangalore. Bangalore. Okay, you are doing it in Bangalore. Okay. So in Bangalore you joined all the groups. Okay, let's suppose you do 10 to 15 groups you have joined. Okay, and generally they allow you to post 5 to 6 groups at one point of time. If you do like 10 or 15 posting in one day, or with like within 1 hour or something, okay, they will block your account, okay, for 24 hours. That's one drawback. Secondly, when you post it, okay, you're not targeting people. Though people have joined group, okay, let's suppose I'm living in Delhi, okay, and I need to look for a home 3 years back in 2017 when I last moved my home. Okay, I'm still in that group.
I haven't left over. So your ad will not benefit me there. Are you able to understand my point? Yeah, yeah. Okay. And how, when you do a paid ad, okay, how it will help is that Facebook will try to show the ad to people who are already in search for a house. Supposedly, I'm searching on Google, okay, and I'm Facebook track the activity. I'm searching on Google, they have the data for that. Okay. I'm joining groups recently, okay, for ad buyers or clicking on ads for real estate, okay, house buyers. Then they'll know and they'll show the ad. That is the benefit you get. So if I'll comprise here, okay, you'll get quick leads with paid ads, targeted, quality. These are the three things. With organic, you have to post in groups. Okay, the page you have to create. Again, for liking the page, you have to ask people. Okay, then you have to again spend. Okay, so let's stick to generating the lead. So it will be create your own group, ask people to join in that, and the other way around is post in different ways. And that I told you there's a limit. Okay, that's how you can do it. So it will just time consuming, okay? And then again the quality. That would be. Uh, Coming to this Facebook Ad Manager, it opened just like this, okay? Because I've already created ads and already billing has been set up. So what will happen if you have never run the ad? It will ask for few simple details like the time zone, the billing detail like the credit card or the debit card from which you want to make a payment. Just simple, nothing much. Okay? And this will again be managed by a personal ID. Okay, so I'll go ahead. There are three parts in it. Okay, one is campaign, one is ad set, and one is ad. So what is the difference in that? The simple difference. Campaign is the main category. Let's suppose I'm doing a webinar for Learn English, okay, and I want people to go ahead and come. Who wants to learn English? I'm generating leads. Okay? So in the campaign, I'll mention lead generation for only English. If you see here, okay, it says lead generation for only English. Okay, then there would be ad set. Okay, that will be a subcategory for that, which should be lead generation, and then ads, which basically includes the creatives. Okay, the headline which we talk about that. Okay. So I'll go ahead and create one, okay, to give you a brief. So first of all, you have to have an objective here. Without an objective, you cannot do it. Okay, so we'll go for lead generation. Just select lead generation. Here on the left, you have to say create. It will ask for the objective. You said lead generation, then continue. Okay. So now we came to the second part. It's a new campaign. Name it. Just keep it simple. So because no one will be able to see it except you or anyone have access to Facebook Ad Manager. Okay, so you can give it the name according to your understanding or how you want to keep it. English webinar October, so that I'll remember. That's for my reference. I'll remember. Okay. So now here it will go like an auction type. Okay, let's keep it like that. How it works basically, you don't have to make any changes just for an understanding bit how auction works. Let's suppose you Lokmanji and I am trying to teach English and running a lead generation ad. What will happen? Okay, who is bidding more? Like who is putting more budget? Okay, their ad will show more. Okay, my ad will show the less. So that is basically auction. In the evening, if you get more response, the ad is costlier. Okay, so at that point of time, it that is based on auction basically. Who is paying more? That's how it goes. So don't touch it, don't change anything, just keep it the way just to understand the objective. Okay. A/B testing, just keep it that way. I'll tell you about the A/B testing. Okay. Right now we will not be touching it.
Now the campaign budget optimization is simply that when you have different type of campaigns, okay, not one but couple of campaigns you're running, so it will what Facebook will do is they will distribute your budget accordingly. Which campaign is performing good, they will put more budget there. So let's keep that aside now. Okay. So we'll go to next. Now we'll go to new ad set. Okay. Here what you have to do, you have to select the page. Okay. If you see here, if you want, you can change the ad set name. Then you can see the page, choose the Facebook page you want to promote. Only English is created. Okay, if you see there are other pages as well. Okay, 7 personal pages, you can select it from here as well. I chose learn English. Okay, this you can do. So I'll choose only English because it already has the content there. Then okay, so catalog is not needed, it is needed when you're selling a product. Okay, so we'll leave that. Now the budget. Okay, if you see the budget is 800, which is by default. On the left hand, sorry, on the right hand, if you see the reach, the people, how many it will reach is like 8.4k to 24k. 8,500 से 24,000 तक लोगों तक ये रीच करेगा. उसमें से 21 से 60 लीड आपके पास आएंगी. एवरेज डेटा ये आपको बता रहा है, एक एस्टिमेट बता रहा है कितनी लीड आएगी. अब मैं इसमें बजट चेंज कर देता हूँ, मैं 100 रुपए पर लीड डाल देता हूँ. ठीक है, सो अब इसमें लिख रहा है 1000 से, अगर आप और इससे नीचे देखे जाएंगे, ठीक है, तो आएगा 1000 रुपए से 3000 में आपको जीरो लीड आएंगे. तो वो जीरो नहीं होगी, बट इट विल बी लेसर देन 10. ठीक है, सो व्हाट विल डू, वी विल कीप इट 200 हियर. ठीक है, इससे 5 से 15 लीड आएंगे. So I'll ask one of the person who was already there with us in Facebook ad class. Before that, he had generated lead, so he will be able to share a bit of budget there. Okay, so we'll ask him to share it at the end of the class. Okay, you can put the start date whenever you want to run, and end date if you want. Okay, and what you can do, there's one more thing, which is daily budget, lifetime budget. Sorry, the lifetime budget. What it will do, it will let's suppose you want to run the ad. Your today is 30th. I want to do the webinar on 5th. I want the leads by 3rd. Okay, so I have 4 days to run this ad. Okay. So what I'll do, I'll put it lifetime budget and put it like 1000 for 4 days, 800 or 1000. Okay. So what Facebook will do, Facebook आपका पूरा बजट पूरे तरीके से यूज करेगा. हो सकता है वो एक दिन में आपको 5 यूज कर दे, हो सकता है 500 यूज कर दे, हो सकता है वो डेली 200 100 करे, रिस्पॉन्स के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपके 200 स्पेंड हो जाएंगे तो आपका रोक देगा. ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है. आप शुरू में डेली बजट के साथ स्टार्ट करिएगा. ठीक है, अगर आपको लीड्स बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, तब आप लाइफ टाइम बजट चाहिए और लिमिटेड टाइम हो तो ना वो भी डेली बजट. ठीक है, नाउ इफ यू गो हियर, यहाँ पे आपको लोकेशन टारगेटिंग मिलेगा. अब अगर मुझे इसमें लोकेशन इंडिया बाय डिफॉल्ट मुझे एडिट करना है, तो व्हाट आई डू, आई क्लिक ऑन द एडिट बटन, सर्च लोकेशन, include Delhi. Okay, Delhi will be included. I'll include this is the area in Delhi. People who are not living in Delhi, just an area. Okay, specifically I'm showing that so that you'll understand if you want to target as per the area. Connaught Place. Okay, this is in central Delhi. It's very old market built during the British time. So you get it. Okay, it will show within 1 mile. You can do it. Selected that. Okay, you can change it from here as well. Okay, that's what you can do. If you want to exclude any, if you're, for example, you're in delivery business, you don't want to include that particular area, so you can click on exclude. Okay, I'll put another area of Delhi. It shows it there. Just a minute.
So this is the area, okay, which it will exclude. So you just have to select exclude, okay, and if you want include is already selected by default. You can go ahead and do targeting as per city and everything. Okay? So here you can average, you can take advantage of this age factor. Okay, if you want to include from here, you can change it. Okay, I'll change it to 35 because people generally want to learn English. Okay, are job seekers. Okay, and who are already want to grow in the professions. Okay, or students. 37. That's how you can select all genders, male and female both. Then we'll add demographic as per the suggestion which I told you, like interest and behavior. So I'll include here in demographic. Job seeker, interested ones. Okay, one who is interested in English learning. Learn English. So people who have already liking these pages. Okay, so if you hover, okay, on the left right hand side, you will see additional interest, learn English. Size is 27 lakh people are already there who is actually have expressed or like pages related to learn English. So that is where targeting actually helps. Okay? So don't put much. Okay, for narrow down the audience. If you see on the left right hand side, यहाँ पे ऑडियंस कम हो गई है मैंने, और मैं जितना टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, उस हिसाब से ऑडियंस बिल्कुल कम हो गई है. उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने एरिया जो डाले हैं, ठीक है, वो जो खाली एरिया डाले हैं, इस वजह से अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरी अभी रीच बन जाएगी. So India country region, okay, if you see अपने आप ही रीच कर गई पूरे इंडिया. सो आप जो टारगेटिंग रखें, ठीक है, मेक श्योर आप ज्यादा टारगेटिंग ना हो, वो नैरो डाउन कर दीजिए. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी. नाउ लैंग्वेज कीप इट सेम, और लैंग्वेज आप चेंज मत करिएगा. दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट. अब इंस्टाग्राम के भी ऐड यहीं से ही चलते हैं, ठीक है. सो इफ यू वांट, आप इसे हमेशा ऑटोमेटिक प्लेसमेंट करिएगा. फेसबुक विल ऑटोमेटिकली सी वेयर पीपल आर मोर क्लिकिंग ऑन द ऐड, तो वो आपका ऐड नहीं शो करेगा. कीप इट ऑटोमेटिक प्लेसमेंट. और कई सारी चीजें हमें खाली फेसबुक पे छोड़नी होती है, ठीक है. दिस इज कॉस्ट कंट्रोल, कि हम एक बजट दे देते हैं कि इतने में आप डिलीवरी करें, बट इससे ज्यादा की लीड हमें नहीं चाहिए. बट डोंट गो इनटू इट, जस्ट कीप इट द सेम वे एज इट इज, क्योंकि फेसबुक आपको ट्राई करता है जितनी ज्यादा लीड आए उतना ज्यादा फायदा. Now if you go here, okay, this is where the headlines, creatives, images comes in picture. Okay, so first of all we'll go step by step. If you want, you can change the name. Okay, that's it. फेसबुक का पेज, आपका इंस्टाग्राम का पेज, इफ एनी, अगर इंस्टाग्राम में डोंट वरी, फेसबुक का पेज होना चाहिए. नाउ सिंगल इमेज और वीडियो, ठीक है. क्राउजल ऐड होते हैं जिसमें कई सारी इमेज होती हैं, हम लोग बस राइट स्वाइप करते जाते हैं, सॉरी लेफ्ट स्वाइप करते जाते हैं, वील गेट टू नो, वील सी मोर इमेजेस. उसमें एटलीस्ट आपको 2 इमेजेस डालनी होती है, ठीक है. और यहाँ पे हम सिंगल इमेज और वीडियो ऐड बना रहे हैं, ठीक है.
So now the image is already there, but I'll clear image. I'll show you how to add it. So simple add media पे click करिए, add image या add video, whichever you have. अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इमेज है, नहीं होगी तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर सकता हूँ. Okay, I already have the image. I'll select this one. I'll continue. यहाँ पे मेरी इमेज आ गई. ठीक है. Now you have to understand it's about primary text. ठीक है. So primary text जो मैंने आपको बोला था, आपका हेडलाइन और जो टेक्स्ट है that should be always attractive, gripping होना चाहिए. So अभी मैं यहाँ पे ऑफर कर रहा हूँ इंग्लिश. ठीक है. तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं. ऐसा नहीं चाहिए जो इंग्लिश बोलते हैं. ठीक है. इंग्लिश सीखना. तो मैं पहली बात लिखूंगा लर्न इंग्लिश. ओके. सो पहला चीज मिला कि लर्न इंग्लिश. अगर कोई सीखना चाह रहा है तो वो दिखेगा लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा हूँ, पहला वर्ड ही दिखेगा. वो एटलीस्ट कुछ स्पैन ऑफ सेकंड्स का अटेंशन देगा इस पे. रजिस्टर फॉर वेबिनार. दो चीजें हैं, दो लाइनें, दो सेंटेंस लिखे हैं, ज्यादा नहीं लिखा. लर्न इंग्लिश, रजिस्टर फॉर फ्री वेबिनार. अगर आप चाहें इसमें एक और चीज कर सकते हैं, इस फ्री को आप कैपिटल में कर दीजिए. ठीक है. सो इट विल गिव मोर क्लैरिटी. फ्री इसमें मतलब जो वेबिनार है फ्री, ही डोंट हैव, ही और शी डोंट हैव टू पे. ठीक है. तो मेरे दो चीजें यहाँ पे उसको हिट पॉइंट जो पॉइंटर्स होंगे, पहला लर्न इंग्लिश अगर कोई इंग्लिश सीखना चाह रहा है, और रजिस्टर फॉर फ्री वेबिनार. तो मुझे दो वैल्यू किसी को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. नो हेडलाइन. लर्न इंग्लिश फॉर फ्री. So if you see, आपको राइट हैंड साइड में इमेज में दिखता जाएगा कि एक्चुअली आपकी इमेज क्या है, आपकी एड कॉपी बंदे को कैसे दिखेगी. तो अब यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया है कि जो इमेज में बंदा है उसका नाम पल है. ठीक है. वो इंग्लिश सिखा रहा है. ठीक है. एंड इट्स फॉर फ्री. और फिर एक जो हम कहते हैं सीपी है, कॉल टू एक्शन, वो होता है रजिस्टर नाउ. ठीक है. तो यहाँ पे हेडलाइन में आ गया. ठीक है. फ्री को मैंने हाईलाइट कर दिया, और जो बंदे का एक पॉइंट था जो हम चाहते हैं, जो सर्विस सीखना चाहते हैं, वो भी क्लिक करें, उसका मैंने क्लियरली मैसेज उधर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है. ठीक है. डिस्प्ले लिंक इज ऑप्शनल. ठीक है. अगर आप लिंक देना चाहते हैं, ठीक है, अपने ऐड का, वो दे सकते हैं, बट जस्ट कीप इट दैट वे. साइन अप, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो फॉर्म भरे, तो साइन अप कॉल टू एक्शन है, वरना इस पर क्लिक करके और भी दे सकते हैं. सब्सक्राइब, रिप्लाई, नो बुक, नो डाउनलोड. तो साइन अप वर्क्स मोर, मेक मोर सेंस हियर. ठीक है. अब मेरे को इसका लीड फॉर्म क्रिएट करना है. हाउ विल इट क्रिएट अ फॉर्म? इंस्टेंट फॉर्म. ऑटोमेटिकली इसी में ही आपका लीड फॉर्म बन जाएगा. क्लिक ऑन क्रिएट फॉर्म. ठीक है. दो चीजें आप देखिए, आपको ज्यादा लीड चाहिए फॉर्म टाइप में, हायर इंटेंट चाहिए. ठीक है. मुझे ज्यादा लीड चाहिए. ठीक है. आई सिलेक्ट दैट. मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे फॉर्म का. तो मैं अगर चाहूँ तो मैं दूसरे एड्स में भी इसे यूज कर सकता हूँ. मेरे लीड जनरेशन में फॉर्म तो सेम ही रहता है. मुझे नॉर्मली इंफॉर्मेशन हमेशा सेम ही चाहिए. यूज द इमेज फ्रॉम द लैब, और आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं. आप सेम रख लीजिए. इट्स अप टू यू. Doesn't make much of a difference, which I've seen.
enter a short line here. Okay, so we want them to register for webinar. तो हम यहाँ पे simple लिखेंगे register for webinar. कभी कभार क्या होता है, लोग इस फॉर्म पे आके वापस भी चले जाते हैं, तो हमें क्लियर इंडिकेशन देना होगा. जब भी आपकी एड कॉपी हो, बिल्कुल क्रिस्प और इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि कुछ वर्ड्स उसे समझ में आ जाए. हमेशा छोटी एड कॉपी ज्यादा काम आती है रादर देन बिग. अब क्वेश्चन मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए. बेसिक, जितना छोटा फॉर्म होगा उतने ज्यादा लोग आपका फॉर्म भरेंगे, उतनी ज्यादा लीड क्रिएट होगी. सो ईमेल एड्रेस एंड फुल नेम इज देयर. अगर मुझे और चाहिए तो मैं डाल सकता हूँ, बट मुझे इधर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा जरूर. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट को मैं कैसे करूंगा. ठीक है, सो आई गो हियर, आई पुट ऐड कैटेगरी. यहाँ पे कॉन्टैक्ट फील्ड, यहाँ से मैं उनका फोन नंबर दे दूंगा. ठीक है, 3 गेट इज बेस्ट. अगर आपको और चाहिए सो यू कैन क्लिक एंड फिगर आउट. ठीक है, आप सिटी भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्लूड सिटी. ठीक है, तो 4 डिटेल मेरा फॉर्म इस तरीके से आपको दिखेगा. ईमेल एड्रेस, नाम, फोन नंबर एंड सिटी. ठीक है, नाउ प्राइवेसी पॉलिसी एक चाहिए होती है. प्राइवेसी पॉलिसी इज बेसिकली कि आप उनका डेटा कलेक्ट करके हाउ यू विल यूज इट, वेदर यू विल सेल इट, वेदर यू विल कीप इट विद यू. ठीक है, तो इसकी एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है जो आपकी वेबसाइट पे उसका लिंक होता है. और जब आप पब्लिश करते हैं तो एक्चुअली में जो फेसबुक है वो डायरेक्टली पहले आपका एड रिव्यू किया जाता है, उसके बाद वो जाएंगे डायरेक्टली आपके एड पे. ठीक है, सॉरी, आपकी वेबसाइट पे. हम उस लिंक पे चेक करेंगे. सो इधर हमें लिंक ऐड करना होता है. तो आई गो टू लर्न इंग्लिश एंड दिस इज बेसिकली फेसबुक पॉलिसी. दैट्स व्हाई यू नीड इट. Yes. This is the privacy policy. I'll copy इसका link. Okay. इधर मैं link ऐड कर दूंगा. ठीक है, done. If you want, I will put in link text. Okay, and then it's a completion. If you want, thank you, I said you can visit or exit from now. Okay, and you can write. वेबिनार की हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दें. ओवर ईमेल पे हम लोग उनसे शेयर कर देंगे. और साथ में अपने वेबसाइट का चाहे तो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. ठीक है, एक टेक्निक और बताऊंगा इसमें. ठीक है, विच वन ऑफ द स्टूडेंट आई थिंक रौनक हैड राइट, ही टोल्ड मी एग्जैक्टली. आप चाहे अगर अपना व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल सकते हैं. तो दे विल जॉइन योर व्हाट्सएप ग्रुप और उससे अपनी ऑडियंस को एंगेज करना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको एंगेजमेंट रेट हाई मिलता है. सो they are familiar with your brand, they have filled the form, और उनको आप यहाँ पे WhatsApp का लिंक डाल सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं. Join WhatsApp group. That's how you can do it, and then you can publish. ठीक है, यहाँ से publish करेंगे. ये मैं अभी सेव कर रहा हूँ. I'm not publishing the ad, but you have to publish it. After you do this, उसके बाद इधर ये आपको ग्रीन बटन जो दिख रहा है, ठीक है, इस पे जाके आपको पब्लिश करना होगा. ठीक है, देन फेसबुक विल टेक 2 to 3 आवर्स या फिर 24 घंटे. इसमें आप इसके अंदर आपका ऐड अप्रूव होगा, फिर आप ऐड अपने चला सकते हैं.
this is what Facebook ad, okay, and how to generate leads from कॉल टू एक्शन की जो लिंक आ रहा था, sorry हेलो अच्छा जी बताइए। नमन जी, कॉल टू एक्शन की जो लिंक वाला जो आ रहा था, जहाँ पे आपने लिखा कि ज्वाइन व्हाट्सएप ऐप, उसके लिंक, उस लिंक में क्या डालेंगे? आपने WhatsApp ग्रुप का लिंक आपको डालना है, अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें, ठीक है, वो डालना ओके। है। और ये डायरेक्टली प्राइवेसी लिंक जो था, उसमें वेबसाइट का लिंक डालेंगे? आपके प्राइवेसी, जो वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट पे एक पेज ऐड होगा प्राइवेसी पॉलिसी, अच्छा, वो हर वेबसाइट पे होता है? वो आपको करना होगा अगर आप ऐड चलाना चाह रहे हैं। ओके सो अगर नहीं है तो क्रिएट करना होगा, ठीक है, बट आप क्रिएट कर लीजिएगा उसको। ओके, और वो इसके बिना वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, और फेसबुक और गूगल इसमें बहुत स्पेसिफिक है कि आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका आप यूज कैसे करेंगे। तो प्राइवेसी ओके, पॉलिसी में यही होता है कि हम आपका डेटा को आगे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा भी आगे सेल होता है, ठीक है। So ओके। these are the things प्राइवेसी पॉलिसी का पेज फिर ऐड कराना पड़ेगा ऐड करा वेबसाइट जी में? जी। ओके, वो और जो डेवलपर होंगे, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट डेवलपर कर रहे हैं उनको पता होगा, उनसे बस ये बोलिएगा प्राइवेसी पॉलिसी को पेज ऐड कर दो, उन्हें जहाँ तक पता भी होगा प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बता दूँ जी। ठीक है, ओके, आज इसमें थोड़ा सा पार्ट में और कवर करूंगा, बट आई नो इट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है प्लीज टेल मी। या तो आप टाइप कर दीजिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, या फिर अगर आप चाहें तो मैं रेज हैंड कर दीजिए, आई अनम्यूट यू एंड यू कैन टेल मी। Okay, I think no one has any question. Okay, great, understood then. अगेन इसमें एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूंगा, हमें लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, बट जब आपके पास क्वालिटी लीड आएंगे और वो जो कन्वर्ट होंगे ना, तो वो अपने आप ही आपको, ओके आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है, बट वी शेयर द रिकॉर्डिंग। जब आपके पास अच्छी क्वालिटी लीड्स आएंगी, ठीक है, आप 4 ऐसी लीड ढूंढे जो कन्वर्ट ना हो और एक अच्छी क्वालिटी लीड ढूंढे, उसमें ज्यादा फायदा है और उसमें बिजनेस करने में मजा आता है, रादर देन एक ऐसी क्वालिटी जिससे, एक ऐसी लीड जिसको मैं बार बार कॉन्टैक्ट करता रहूँ, फॉलो करता रहूँ, मेरा प्रोडक्ट परचेज ना करे, ठीक है, ना ही उसका इंटरेस्ट हो, तो मेरा टाइम एनर्जी सब कुछ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर ट्राई कर रहे हैं, सो बिजनेस में आप कभी, जैसे मैंने कहा था, एक सोर्स पे डिपेंड नहीं होते, सो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग विदाउट मनी और एनीथिंग व्हिच इज वर्किंग, बट ट्राई एक्सप्लोरिंग अदर मेथड्स एज वेल। ज्यादा पैसा मत लगाइए, ठीक है, ट्राई विद 500 और समथिंग, ठीक है, 100 रुपीज डेली का, स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको क्वालिटी लीड मिलने लगेगी, ठीक है, आपको अपने आप पता चलने लगेगा। सो नाउ आई शेयर सम ऑफ द डेटा, ठीक है। जब डेटा आता है, ठीक है, तो 2 पॉइंटर रह गए थे, एक एबी टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एड, ठीक है, उसका हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। I'll show you how data works and how it will help. Just give me a moment. I'll open the ad which I ran. So I'll click on view charts here. ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे insights are available including just give me a moment.
ओके, ये ऐड चला था हमारा 2 से 3 दिन, क्योंकि यहाँ पर अदर सोर्सेज से भी लीड आ रही थी, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ था कि जो रीच हुई थी वो, जो डेटा हमारा जब ऐड चलता है तो हम उसे एनालाइज कैसे करते हैं, जो हमारी 2 स्लाइड चुकी थी अबाउट परफॉर्मेंस, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, ठीक है। सो हमारा जो रीच हुआ व्हिच इज 1258 पीपल रीच, 81 रुपीज में मेरे पास आई 9, ठीक है। अब ये पहला ओवरऑल डेटा हमने देखा, ठीक है। अब हम और इसमें डिटेल में देखते हैं डेमोग्राफिक में, यानी मेल और फीमेल। अगर मेल का डेटा देखें, जो मैं एज ग्रुप का आपको बात कर रहा था 18, 24, 25 से 34, उसका डेटा आया है 18 से 24 के लोगों ने देखा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वुमेन है, इफ यू सी 182 लोगों ने देखा और एक जने ने मेरे ऐड पे अपना लीड भरा है। इफ यू सी ऑन द राइट साइड, इस पे 85 ज्यादा लोगों ने भरा है, 25 to 34 और 18 to 24। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे पता लग रहा है कि मेरा जो एनालिसिस था वो कहीं ना कहीं सही था, कि इंग्लिश सीखने वाले जॉब सीकर होते हैं या प्रमोशन लेना हो वो 35 की एज तक होता है, ठीक है। उसके बाद लोग अपने प्रोफेशन में रहते हैं पर इंग्लिश नहीं सीखते हैं, ठीक है। सो लाइक अराउंड द चेंजिंग, चीजें चेंज हो रही हैं, लोग इंग्लिश की तरफ ज्यादा, क्योंकि कॉर्पोरेट में ऑफिस में ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोगों को प्रमोशन और प्रेफर किया है, सो दैट इज, सो दिस इज दैट एनालिसिस। अगर आप देखेंगे पर्पल लाइन शो करती है कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और लाइट ब्लू लाइन शो करती है कितने लोगों को ऐड दिखा है। तो मेन का अगर मैं देखूंगा टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, 1075 लोगों ने देखा है, 8 पीपल हैव क्लिक्ड एंड फिल्ड द फॉर्म। सो इफ यू सी दैट, ठीक है, तो मेरा एड का जो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वो जो मेन है वो सीखना चाहते हैं, वुमेन उतना नहीं। तो मैं अगली एड कॉपी जब बनाऊंगा, अगला कैंपेन बनाऊंगा, उसमें मेन को ज्यादा फोकस करूंगा। दैट्स हाउ इट गो। अब इसमें प्लेसमेंट और देख लेते हैं। प्लेसमेंट जो मैंने आपका रहा था, आपका ऐड दिखेगा कहाँ से? फेसबुक का न्यूज फीड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उसमें दिख रहा है, स्टोरीज पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे दिख रहा है। तो अभी हमें पता लग रहा है ये चीज खाली फेसबुक पे दिखा है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो मैंने वीडियो डाली थी वो थोड़ी लंबी थी, अराउंड 2 मिनट की थी, क्योंकि मैसेज मुझे थोड़ा क्लियर देना था उसको, इस वजह से तो खाली फेसबुक पे ही चला है, ठीक है। सो द बेटर इज एक दिन में ही मेरे पास 10 लीड आई एंड पीपल हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, ऐसा नहीं किसी ने कर दिया, ठीक है। अगर मैं शायद पॉज चला रहा होता और मेरा लीड कई जगह से आ रही थी, इस वजह से और ऐड इसको नहीं चलाया। बट इफ यू सी, this is how you can go ahead and generate leads for the business, okay. uh, just give me one quick moment here. This is about leads, okay. Now the last point I'll discuss here, okay, which I'm left with, is A/B testing. A/B testing is simply just give me a moment, do some share here. Can someone type yes if you can see my new screen? Okay. Thank you very much, Rajesh. Okay. So I told you about the performance. So I'll not go back to that. Okay? और बहुत ही सिंपल भाषा में वही है, ठीक है। So we'll डिस्कस अबाउट A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग क्या होती है? सिंपली तरीके से कि आपने दो तरीके के डेटा डाले, दो अलग अलग कैंपेन, ठीक है। अब डेटा किस प्रकार से डाले? एक में वीडियो डाली, एक में मैंने इंग्लिश डाली, तो मुझे और फिर उसका और टारगेटिंग सेम रखी, बजट सेम रखा, और उसके बाद मेरे पास डेटा फ्लो होना स्टार्ट होता है कि मेरा कौन सी चीज ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, इमेज या वीडियो। अगर वीडियो परफॉर्म कर रही है तो मैं उस इमेज पे ज्यादा, उस एड पे ज्यादा पैसे लगाऊंगा, तो मुझे टेस्टिंग पता लग जाती है, ठीक है, जिस पे ज्यादा क्लिक आए। अगर मेरे को 100 रुपए खर्च करके 1 से 5 लीड आती है इमेज से, और वही 100 रुपए खर्च करके वीडियो से मेरे पास 8 लीड आती है, रियल टाइम बेसिस पे हम डेटा इसको इस तरीके से लेते हैं, क्लैरिटी मिलेगी। 8 लीड आ रही है तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी वीडियो दिखाऊं, मैं इमेज को दिखाऊं, जिसपे मेरे को दिखा के पैसे तो उतने ही लग रहे हैं और मेरे को उससे डेटा कम मिल रहा है, तो मैं उसमें अराउंड वीडियो देखूंगा,
ठीक है, दैट इज द थिंग। अब इसमें इमेज टेस्ट होती है, ठीक है। अगर आप पॉइंटर देखेंगे, ऊपर का पार्ट सिंपल एक बताता है जो मैंने आपको बताया। इफ यू वांट यू कैन रीड इट, यू रीड इट। AB is a strategy. AB testing is a strategy in marketing which two version A and B, the control and the treatment, are tested against each other. The goal is to identify changes that increase the chances of the what you want to occur. That's a simple definition जो मैंने आपको बताया। So now when we A/B test of Facebook ad, we are looking at 5 different variables. 5 variables हम देखते हैं। पहली चीज इमेज, दूसरा टाइटल एंड हेडलाइन जो आपको बताया था, बॉडी कॉपी जैसे कहेंगे एड कॉपी, या टेस्टिंग द डिटेल और टेस्टिंग टारगेट ऑडियंस, ये 5 चीजें करते हैं। नाउ इसका एक छोटा सा हम प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल बिटवीन हियर डू मोर। थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग, जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, दिस ये इमेज लेफ्ट और राइट की इमेज देखेंगे। लेफ्ट में सिंपल मैसेज है, न्यू कलेक्शन, फर्स्ट डे 20% ऑफ, सेम फोटो सेम पर्सन, सब कुछ सेम। बस राइट फोटो में उन्होंने बस इतना लिख दिया, वही न्यू कलेक्शन फर्स्ट डे 20% ऑफ। उसको वो थोड़ा अट्रैक्टिव कर रहा है, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक में थोड़ा आंखों में लग रहा है, एंड दैट इज वेयर क्लिक्स इंक्रीजेस। आप उतने ही पैसों में ज्यादा, अगर ये शॉप नाउ का है, चाहते हैं वेबसाइट पे लैंड करके शॉप करें, उसी में ही आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, खाली बस इमेज चेंज करके। सो आपको उस पॉइंट से सोचना स्टार्ट करना है, इफ यू आर डूइंग मार्केटिंग, दैट आई नीड टू पुट ग्रेट इमेजेस, ग्रेट वीडियोस, बिकॉज दैट्स एंड ग्रेट हेडलाइन, बिकॉज दैट्स व्हाट परफॉर्म्स इन Facebook ad. Okay, so that's from my side. Okay, any question anyone has? इस मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे हमने अभी हमने जो सारा एक चार्ट देखा कैंपेन का, जी, इसमें जो नंबर्स जो है वो जो डाटा है वो कैसे हम वो ड्रैग करेंगे? कैसे ट्रैक करें, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे आप अपने फेसबुक एड मैनेजर पे आए, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम हियर, यहाँ पे व्यू चार्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, सिंपली क्लिक ऑन व्यू चार्ट्स, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल डायरेक्टली ऐड में भी चले गए, ठीक है, तो इधर से आप ऐड में जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने सारी इमेजेस और टारगेटिंग करी थी। इसमें भी यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर सी चार्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, ओके। आप इधर से क्लिक करके अपना पूरा परफॉर्मेंस का डेटा, डेमोग्राफिक सब आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें नाम नंबर जो है ना वो कहाँ से मिलेंगे? वो मेरा क्वेश्चन है। वो आपका क्वेश्चन, वो आंसर होता है जब आपका लीड आती है तो पेज पे जाएंगे, ठीक है, पेज पे आएगा पब्लिशिंग टूल। अभी इसमें लीड नहीं होगी तो 30 डेज तक रहेगी। अच्छा, 30 to 60 डेज, तो मैं आपको डाउनलोड कर देता हूँ। सो दैट इज नॉट समथिंग, ठीक है। पेज पे जाएंगे, वहाँ पे पब्लिशिंग टूल होगा, पब्लिशिंग टूल में जाके आप अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, पेज पे जाके पब्लिशिंग टूल उस पे जाएंगे। I'll write the steps, ठीक है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा, तो आप नोट्स बना लेंगे। राइट। और अगर किसी का क्वेश्चन है, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग फेसबुक पेज को मेरे को लाइक करते हैं, उनका डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हो क्या? उन जिन लोगों ने फेसबुक पेज को लाइक किया, उसमें मैनुअली जाके आपको पता तो लग जाता है किसने लाइक किया है, पता लग जाता है। तो आपको मैनुअली जाके करना होता है, इकट्ठा डेटा आप रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, मैं मैनुअली जाके अच्छा फेसबुक से नंबर्स कैसे निकालते हैं लोगों का? किसी का जैसे हमें पता लगा इस आदमी ने फेसबुक पेज को लाइक किया है मेरे को, और मुझे उसका नंबर चाहिए, तो फेसबुक से मिल सकता है हमें? अगर उसने प्राइवेसी पॉलिसी ऑन कर रखी होगी, ठीक है, अपना खुद का प्राइवेट करा होगा तो नहीं नंबर मिलेगा। दूसरा नंबर डाला होगा उसने तभी आपको मिलेगा। मतलब ऐसे कोई टूल है नहीं, मतलब कुछ एक्सट्रैक्शन के टूल्स आते हैं वैसे, ठीक है, व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल, मतलब आप यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली फेसबुक से नहीं मिलेगा आपको डेटा सर्च करना। उतना इंफॉर्मेशन देते नहीं है,
हुआ क्या था, इसका इंसिडेंट बताता हूँ। आज से 1 साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले हुआ था, जब मार्क जुकरबर्ग जो सीईओ है, ठीक है, उस पर प्राइवेसी पॉलिसी कंसर्न हुए थे, ठीक है, और डेटा भी हैक हुआ था, पासवर्ड शेयर हो गया। तब से ये प्राइवेसी को लेके और थोड़ा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए वो थोड़े स्ट्रॉन्ग आए हैं। दैट इज तब से थोड़ा टफ है करना। अच्छा, जिसने जिसने लाइक किया हमारे को, मेरे फेसबुक पेज में, मेरे फेसबुक ग्रुप में वो ऐड नहीं है, फेसबुक में ऐड नहीं है, उसको ऐड करने के लिए उसको सर्च कैसे कर सकते हैं हम? आपको ग्रुप में ऐड करना है उन्हें, ग्रुप में, या चलो मुझे उसको इनवाइट भेजना है? ठीक है, तो आप वहां से अपने क्या कर सकते हैं, एक एक बंदे को, ठीक है, आप वहां से लिस्ट में जाके, ठीक है, आप डायरेक्टली उनको मैसेंजर में फेसबुक पर दे सकते हैं। बाकी इनवाइट का ऑप्शन आता है, ठीक है, सो यू कैन इनवाइट एज वेल। ग्रुप में भी आएगा आपके पास, तो आप ग्रुप पर एंटर करें तो वहां से इनवाइट भी कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन फेसबुक मैसेंजर में मिल जाएंगे मेरे को नंबर्स, वो लोग? देखिए, नंबर नहीं मिलेगा सर, नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन नेम मिल जाएंगे, वो है ना? नाम मिल जाएंगे। आप नाम के थ्रू उन्हें, मतलब होगा क्या, आप खाली फेसबुक से ही उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओके, फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं, आप इनवाइट दे सकते हैं, दे कैन जॉइन द ग्रुप। यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू डू इट, यू कैन नॉट गेट एनी पर्सनल डिटेल्स। करेक्ट, आप उन्हें रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ओके, दैट्स हाउ, अगर आप पेड नहीं कर रहे हैं, ओके, ऑर्गेनिक में हैं। राइट। जी, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन हैज? If not, then Ronak, are you there? Yes sir, I am here. हाँ रौनक, आप एक बार आपने ऐड चलाया था ना, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपना जर्नी शेयर कर दीजिए, ठीक है, within 2 to 3 minutes, so that people know how powerful Facebook is। आप कितना एड स्पेंड कर रहे थे, कितना बिजनेस जनरेट किया, ठीक है, so that people will understand the power of। Okay, yeah. So from I guess in June or July, I did your digital marketing course, the short 7 days digital marketing course. In that, in one class, I learned your Facebook ads, about the Facebook page, Facebook ads, how to set up the Facebook ads and all. So from that, all the deeps and knowledge which we require to set up a Facebook ad, I came to know. So from that, from last 1 month now, I am creating a Facebook ad of daily 1 week of every Sunday a new webinar. So every Sunday I keep a different webinar of my different subjects, in which I keep run Facebook ads. I keep a daily budget of, no, I keep a lifetime budget of 3,000 rupees. 3,000. So this yeah, is for every week, हर हफ्ते yeah, every week for 3,000 rupees. So in which I get approx 250 to 300 leads. ठीक है, और आपका इफ यू कैन शेयर द रेवेन्यू, मतलब कितना आप सेल कर पा रहे हैं उस डेटा में से? That is confidential, that I no cannot I share. don't need the exact number, just a rough figure, so that people understand. Roughly means I sell 1,000 rupees courses, so from which the 10 to 20 people up convert up to take up the live courses. Yeah. So thank you very much Romy for sharing that. Thank you. people आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, ठीक है, रौनक जून जुलाई में थे हमारे साथ, ठीक है, ही इज डूइंग कंटिन्यूअसली दैट, और मेरे से कभी बार फोन पे आ जाता है, एक बार उनका ऐड भी अप्रूव नहीं हो रहा था, ठीक है, सो उससे भी मेरी बात होती रहती है। सो यू कैन सी कि उन्होंने 2 से 3 हज़ार रुपये अपने खर्च कर रहे हैं एक हफ्ते में, प्लस अराउंड 10 से 20 हज़ार की वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली ही ट्राइड, ही टेस्टेड, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है उनका, ठीक है, सिखाते बहुत अच्छा है इस वजह से। सो आपको ये सारी चीजें सोच के ये देखना होगा, अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं, मेक श्योर इट इज अ गुड लीड, ठीक है, एंड इट गिव्स मनी, क्योंकि आप वहाँ पे लीड जनरेट कर रहे हैं उन्हें कुछ बेचने के लिए, ठीक है, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, डजंट मीन कुछ आप खराब दे रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, ठीक है। सो हमेशा ट्राई करिए थोड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज करने का। फेसबुक इज पावरफुल, मैंने आपको अपनी तरफ से दिखा दिया है, रौनक भी है हमारे साथ, ठीक है, सो यू कैन जज अकॉर्डिंगली। So to conclude this, they would I'll share my number, ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, you can contact me regarding Facebook and Google Ads. Naman sir, I am still confusing the A/B test means what to do and all. For that connect with separately, ठीक है, तो Okay. उसमें आपका पूरा कैंपेन देखना होगा, आपने कौन-कौन सी क्रिएटिव्स आप यूज कर रहे हैं। Okay, yeah. ठीक है, so I have shared my number, okay, so if you want you can check it, contact me if you are running the ad, if you face any problem. Secondly, आपका होमवर्क जो होगा वो ये होगा कि you have to create a page, you have to create an ad for
डेली बजट ऑफ 100 रुपीज फॉर 5 days. दैट्स इट. 500 रुपए लगा के एक बार ऐड कराइए, आपका लीड आना स्टार्ट होगी. यू विल अंडरस्टैंड. जिन्होंने ऐड रन कर रखा है दिल में, जो पहली बार कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो टेस्ट करना बनता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड लर्निंग ऑन द. ठीक है. So I'll be concluding the session. We'll share the recording with you. Okay. So thank you, people. What time I should call you up? Can we connect tomorrow? Tomorrow. Oh, okay. Approx what time? Evening. हाँ, इवनिंग में आप कनेक्ट कर लो अराउंड 7-8 बजे के आसपास. Okay. Yeah. 7 बजे ना. Okay. बाकी एक बार दिन में मेरे को मैसेज कर लेना. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, people, and have a good night. Take care. I even had a query of a website, so that also tomorrow. Yeah. Because I wanted to run Facebook ad. Actually, it's running, but the comparative leads I am getting very low. From Very morning I have kept, but the leads means I am getting website leads, but they are not converting into the leads. So I need to check what I have done. No problem. You didn't try A/B testing, correct? No, I did not. Means every time I just create a new campaign, and from my same audience I just do. Did you change the creatives? No. The poster I have changed, the ad design I have changed, and the website links I have changed. But the means for before I used to do lead generation ads, and now this time I am doing from a landing page to a form. I am doing a website. I have created a form on Ninja Forms. So from that I am doing. But the leads which I used to get before and the leads which I have got now, it's very low. It's very low. Okay. Yeah. So we have to look into that. Okay, connect tomorrow. Okay. Because my actually ad is running and I have a webinar on Sunday, but then I have no plan what to do. नहीं, आप टेंशन मत लो. ठीक है. It will make it work. Okay. Yeah. ठीक है ना, होगा. Because it would be good if for now 5 minutes if you connect, because. हाँ. Okay. So एक काम करो. If I'll be free. Okay. Right now I have another meeting. Okay. One with the client. अगर मैं free होता हूँ, so I'll text you. So I'll connect with you. Okay. Yeah. Okay. Sure. Yeah. Thank you. Thank you, people. Have a great day.